Hello students, today's topic of explanation is amines. Now this comes under the chapter called as organic compounds containing nitrogen. An amine is an organic compound which have nitrogen in it, like nitroalkanes, like diazonium salt. They also have nitrogens. So we'll start with the part of amines. Now everyone is familiar with the definition of amines. Amines are derivative of ammonia. You replace one hydrogen atom of ammonia with an alkyl or aryl group, it will form a primary amine. RNH2 primary amine, 2 hydrogen, R2NH secondary amine, all 3 hydrogen of ammonia, R3N tertiary amine. The primary amine has a functional group amino, secondary amine NH group ko imino, and N group is called as nitrile or tertiary. Similarly, we can also have aromatic amines where aromatic ring is attached to NH2, like aniline. It can be primary, it can be secondary, it can be tertiary. There's so many examples here. मैंने ये IUPAC में भी डिस्कस किया है. Now these amines, a mixture of primary, secondary, tertiary. These are aliphatics. These are aromatic, primary, secondary, tertiary, and so on. Okay. Now amines में सबसे important point है, you need to remember कि amines by nature are base, Lewis base. Why? Because they has a capacity to donate electron pair. Since they are derivative of ammonia carries a pair of electrons. Similarly, all amines will carry a pair of electron and will donate this pair of electron to a electron deficient atom. And substance which donates a pair of electron are called as what? Lewis base. So they are Lewis base. They donate electron to Lewis acid and they form a coordinate bond in that. Where pair of electron is donated by single atom and shared between two. So basically they are basic in nature. Second important point is structure of quaternary ammonium salt. Quaternary ammonium salt में anion cation part होता है. Quaternary ammonium salt can be a halide, can be hydroxide. For example, they denote as R4N plus X minus. It is called as tetraalkyl ammonium halide or tetraalkyl ammonium hydroxide. See, this is a salt plus minus cation anion. Quaternary, 4 alkyl group attached to nitrogen atom. Ammonium, nitrogen carry positive charge. Because of donation of lone pair, it forms one coordinate bond and 3 covalent bond and one ionic bond with the halide or hydroxide. So this QAS के structure में याद रखना, it has 3 normal covalent, 1 coordinate bond. ये lone pair of nitrogen donate हुआ है N से. किसको गया है? R plus को, carbocation को, to form a coordinate bond and a halide to form an ionic bond. So it has 3 covalent, 1 coordinate, 1 ionic. Quaternary ammonium salt. Now structure of amine is similar to ammonia, so it has a pyramidal structure. Primary amine has same bond angle as that of ammonia, 107 degree, but in case of tertiary amine, due to alkyl repulsion, ये थोड़ा 107 से बढ़ के 108 पे हो जाता है, ऑलमोस्ट टेट्राहेड्रल के शेप में आता है टर्शियरी अमाइन. बट प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन इज नॉर्मली अराउंड 107. लाइक अमोनिया, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन की वजह से जो इनका बॉन्ड कम हुआ था. बट नाइट्रोजन एटम इन बोथ द केस इज sp3 हाइब्रिडाइज, बिकॉज अमोनिया में भी नाइट्रोजन एटम जो होता है वो sp3 हाइब्रिडाइज होता है. बट शेप टेट्राहेड्रल क्यों नहीं होता है? बिकॉज ऑफ लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, द बॉन्ड स्क्वीज एंड 109 डिग्री से 107 डिग्री पे आ जाता है, लाइक इन केस ऑफ अमोनिया. सो दिस वॉज द एंटायर क्लासिफिकेशन एंड स्ट्रक्चर endpoint points of the amines. Let's move on to the preparation of amines. The first preparation of amines is Hoffman ammonolysis, जो हम लोगों ने अल्काइल हलाइड्स के रिएक्शन में देखा था, chemical reaction of haloalkanes में, where alkyl halide is reacted with alcoholic ammonia, sealed tube under pressure. If you remember, X is replaced by NH2 and it forms RNH2, a primary amine. And if there is an excess of RX, these hydrogen will replace by R, HX निकल जाएगा and it forms RNHR, a secondary amine which can further react with RX to form R3N, a tertiary amine with the removal of HX. And tertiary amine will react with RX, ये अपना lone pair R को donate करेगा क्योंकि इस पर डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस है, टू फॉर्म R4N plus X माइनस, क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट. ये मैंने डिस्कस किया था हैलो अल्केन्स में, पूरा रिएक्शन इसका लिमिटेशन भी किया था कि इट फॉलोज SN2 mechanism, the attack of the NH2 minus take place from the backside and all. Okay, so refer this reaction from haloalkane in detail.
and this is not a best reaction for the preparation of primary amine because you get a mixture of primary, secondary, tertiary. To avoid this, you take excess of ammonia. ये भी discuss किया था मैंने. Similarly, you can also bring about the ammonolysis of alcohol, but वहाँ पर आपको थोरिया यूज करना पड़ेगा, THO2 और एल्यूमिनिया एज अ कैटलिस्ट. तो यहाँ से OH और H रिप्लेस हो जाएगा, मतलब H2O एलिमिनेट होगा. You will get RNH2, then further H2O will be removed to form R2NH. Further H2O will be removed to form R3N, HNOH remove. तो अल्कोहल का भी अमोनोलिसिस कर सकते हो लेकिन थोरिया चाहिए, और RX का भी अमोनोलिसिस कर सकते हो लेकिन सील ट्यूब अंडर प्रेशर चाहिए. ओके, नाउ नेक्स्ट रिएक्शन इज गैब्राइल थैलीमाइड सिंथेसिस. थैलीमाइड अभी मैंने बताया था आप लोगों को, इफ यू रिमेंबर इन द लेक्चर ऑफ carboxylic acid, chemical reaction of carboxylic acid. When you take an acid, you heat it with ammonia, it form ammonium thalate. हीट करोगे तो थैला अमाइड बनता है, फिर उसको हीट करोगे तो थैलीमाइड बनता है. सो थैलीमाइड में ये हाइड्रोजन जो होता है वो एसिडिक होता है, थैलीमाइड. ओके, तो थैलीमाइड किससे बनता है? थैलामाइड से, जिसमें से इफ़ यू रिमेंबर व्हाट इज रिमूव फ्रॉम देयर, NH3 इज रिमूव फ्रॉम देयर. ये मैंने केमिकल रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में एक्सप्लेन किया है. सो वी आर गोइंग टू प्रिपेयर अमाइन फ्रॉम थैलीमाइड. इफ यू रिमेंबर दिस थैलीमाइड को मैंने एसिड्स में डिस्कवर किया था. एसिड में हम लोगों ने इसका रिएक्शन देखा था. वेर वी टेक दिस एसिड COH, Thalic acid, it is reacted with ammonia and heated, so you get a amide formation. Amide formation is C double bond O NH2. यहाँ पर भी C double bond O NH2. तो this NH2 minus और ये H निकल जाता है. this N goes to C. फर्दर हीट करने पे so अमोनिया निकल गया. so it result into the formation of C double bond O attached to NH. ये था थैलअमाइड. ये हो जाएगा थैलीमाइड. वाई? बिकॉज इट हैज NH लिंकेज. NH इज इमीनो, तो इमाइड. एंड ये है NH2 लिंकेज. NH2 इज अमीनो, तो अमाइड. ओके, सो वी विल सी थैलीमाइड हियर. नाउ दिस थैलीमाइड, इसमें ये एक एसिडिक हाइड्रोजन है, बिकॉज ये पूरा ग्रुप जो है ये -I ग्रुप है. तो फिर -I ग्रुप से जो भी हाइड्रोजन अटैच होता है वो एसिडिक होता है. बेस से रिएक्ट करोगे तो वाटर निकल जाएगा यहाँ से. व्हेन वाटर इज रिमूव फ्रॉम योर, इट रिजल्ट इनटू द फॉर्मेशन ऑफ अ सॉल्ट. दैट सॉल्ट इज C6H4 C डबल बॉन्ड O अटैच टू N माइनस K प्लस, पोटेशियम थैलीमाइड. नाउ दिस पोटेशियम थैलीमाइड इज फर्दर रिएक्टेड विद अल्काइल हैलाइड. तो K और X माइनस विल बी रिमूव and it result into the formation of C6H4 C double bond O attached to N. और N किससे अटैच हो जाएगा? R से. उसकी जगह R आ जाएगा, तो अल्काइल थैलीमाइड बन गया प्लस KX निकल गया. Now this alkyl thaliamide when it is been hydrolyzed by using aqueous alkali like NaOH लिया. पहले स्टेप में अल्कोहलिक लिया था, aqueous नहीं. और अभी हम लोग aqueous लेंगे. तो देखो ये पार्ट पूरा यहाँ से एलिमिनेट हो रहा है. ओ सॉरी, फ्रॉम योर दिस पार्ट इज एलिमिनेटेड. मतलब बोथ द हाइड्रोजन गोज टू N टू फॉर्म RNH2 प्लस क्या बच जाएगा? सोडियम सॉल्ट. ONA गोज टू C डबल बॉन्ड. तो यू गेट C डबल बॉन्ड O ONA C डबल बॉन्ड O ONA. इसको हम लोग बोलेंगे सोडियम थैलेट. ओके, एंड यू गेट अ प्राइमरी अमाइन. अच्छा, थर्ड स्टेप को हम लोग या तो आप अल्काइल थैलीमाइड को HONA से ब्रेक करो हाइड्रोलिसिस, या तो थर्ड स्टेप को आप ऐसा भी कैरी आउट कर सकते हो कि दिस अल्काइल थैलीमाइड इज ब्रोकन बाय यूजिंग वाटर एंड एडिंग एसिड. तो एसिड हाइड्रोलिसिस भी कर सकते हो, जिसमें अगेन देखो ये पार्ट यहाँ से निकल जाएगा टू फॉर्म RNH2 प्लस बोथ द OH गोज टू C. तो आपको आपका ओरिजिनल कंपाउंड दैट इज थैलिक एसिड मिलेगा. या तो फिर यही अल्काइल को आप ब्रेक कर दो हाइड्राजीन से. सो हाइड्राजीन से ब्रेक करोगे तो देखो अगेन यहाँ से क्या निकल गया? RNH2 प्राइमरी अमाइन प्लस यू विल गेट C6H4CO. ओके, C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O attached to NH
NH attached to C double bond. This is called as thallal hydrazide. So ये तीनों स्टेप में से आप कोई भी स्टेप लिख सकते हो, बट टेक्स्ट बुक के हिसाब से यू कैन राइट दिस वन और आई थिंक दिस वन यू कैन राइट, या बट दिस थर्ड वाला ब्रेकिंग यू यूज इन ओनली JEE नीट. ओके, सो इसमें सबसे सिंपल चीज़ क्या है? सिंपल चीज़ ये, शॉर्टकट ये है कि व्हेन यू टेक अ थैलामाइड, यहाँ से N ले लो इसका, ठीक है, एंड यू टेक R फ्रॉम हियर, कंबाइन इट, मेक RNH2. जैसा अभी मैंने यहाँ पर देखो क्या ढूंढा, फर्स्ट स्टेप में KOH, सेकंड स्टेप में C2H, तो C2H5 दिख गया मुझे, N दिख गया, बस यू मेक द स्ट्रक्चर C2H5 NH2, CH3 दिख गया, N दिख गया, तो यू मेक व्हाट CH3 NH2. बट यू कैन नॉट टेक दिस RX, ये जो थर्ड सेकंड स्टेप में आप RX ले रहे हो ना, RX ले रहे हो, इसकी जगह पे आप ARX नहीं ले सकते. यू कैन नॉट टेक ARX ये रिएक्शन नहीं देता. मतलब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जस्ट रिमेंबर कि ARX लिया इसकी जगह पे तो नो रिएक्शन. वाई? बिकॉज दिस CA and X bond in ARX in aryl halide doesn't break. मतलब एरोमेटिक अमाइंस आप नहीं बना सकते इससे, क्योंकि एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन लाइक एनालीन ARNH2 कैन नॉट बी ऑब्टेन फ्रॉम दिस मेथड एज ARX इन सेकेंड स्टेप में जो ARX चाहिए आपको, इट फॉर्म्स अ डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक बिकॉज ऑफ द रेजोनेंस. देखो ये हैलोजन को लोन पेयर डोनेट करेगा, डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा, तो डबल बॉन्ड बिकम्स व्हाट शॉर्ट एंड स्ट्रॉन्ग, तो इट डजंट ब्रेक ओनली. सो इसके लिए यहाँ पर सेकंड स्टेप में ARX लोगे तो आगे रिएक्शन से यहाँ पर AR नहीं आएगा, सो यू डोंट गेट ARNH2. So it is very difficult to prepare aromatic amines, but it is very easy to prepare alkyl amine. This method is best method, a better method than Hoffman, because Hoffman you get a mixture of primary, secondary, tertiary, and QS. You don't get a mixture here. You get only a primary amine, but you cannot prepare aromatic primary amine because AR and X doesn't break here. Okay. So guys, you cannot prepare aromatic amine from this method. याद रखना, because of the resonance. Plus R group, slightly plus R effect of the halogen, C and X bond get double bond characteristic, therefore it becomes short and strong, doesn't break. So उसको second step में डाल के कोई मतलब नहीं है, because ये bond C और X का break नहीं होगा, तो आगे alkyl element बनेगा ही नहीं. Okay. Now let's move to the next reaction. The next reaction is preparation of amines by reduction method, addition of hydrogen. कहाँ पर 4 compounds में आप हाइड्रोजन ऐड कर सकते हैं, ऑक्साइम में, साइनाइड में, अमाइड में and nitroalkane. Oxime is given by C double bond NOH. ये oxime बनता कैसे? If you remember aldehyde and ketone when react with hydroxylamine, condensation reaction, तो O और H2 निकल जाता है and you get RCH double bond NOH. If you remember this reaction, aldehyde ketone, aldoxime, ketone लिया तो RCR double bond NOH. तो ये oxime linkage हो गया. ये oxime पे हाइड्रोजन ऐड करना. So what kind of a reducing agent you can use in aldo and ketoxime? You can use sodium ethanol which gives 4 nascent hydrogen, or you can use lithium aluminum hydride जो strong है. You can use ran and nickel hydrogen या platinum palladium. तो जब भी यूज़ करोगे 4 nascent hydrogen है, मतलब one of the hydrogen goes to this C, another hydrogen goes to this N, okay, एक और हाइड्रोजन N पे जाएगा और एक हाइड्रोजन H पे जाएगा, तो H2, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो गया, क्लीव हो गया, सो यू गेट RCH NH2, ओके, CHH NH2, अ प्राइमरी अमाइन प्लस H2. सिमिलरली यहाँ पर भी वैसे ही होगा, RCRH NH2, अ प्राइमरी अमाइन, ओके, प्लस वॉट H2O. फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक एसिटाल्डोक्साइम जो एसिटाल्डिहाइड से बना है, CH3CHO से बना था, इसको रिड्यूस किया तो ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करो, 4 H है, 1 goes to C, 2 goes to N, 1 goes to OH, so you get CH3 CH2 NH2, सी इथाइलामाइन प्राइमरी. इसको यूज़ किया तो यू गेट CH3 C CH3, H goes to this C, so it becomes CH, and 2 hydrogen goes to this N. So you get NH2, again a primary amine, isopropylamine plus H2. Okay. तो इस पर रिडक्शन ऑफ ऑक्साइम. साइनाइड को रिड्यूस करना है, यू कैन यूज सेम सोडियम इथेनॉल, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, रेन एंड निकल, या सोडियम अमालगम भी यूज कर सकते हैं. अगेन यू रिक्वायर 4 नेसेंट हाइड्रोजन सिमिलर टू ऑक्साइम. 2 goes to C, 2 goes to N. सिंपल. तो यू गेट R CH2 NH2. तो मतलब अगर मैंने यहाँ पर साइनोबेंजीन लिया है,
So you get C6H5CH2NH2 प्राइमरी अमाइन. सोडियम इथेनॉल हाइड्रोजन साइनाइड लिया है तो CH3NH2. मिथाइल साइनाइड लिया है तो CH3CH2NH2. सिंपल. और आइसोसाइनाइड को अगर रिड्यूस करोगे तो यू विल गेट सेकेंडरी अमाइन, और वही आइसोसाइनाइड को अगर हाइड्रोलिसिस करोगे तो प्राइमरी अमाइन. याद रखना, साइनाइड रिडक्शन गिव्स प्राइमरी अमाइन, आइसोसाइनाइड हाइड्रोलिसिस गिव प्राइमरी अमाइन. रिडक्शन नहीं, आइसोसाइनाइड का रिडक्शन क्या है, यानी आइसोसाइनाइड को कार्बल अमाइन बोलते हैं. क्लोरोफॉर्म का मैंने चैप्टर में क्लोरोफॉर्म पार्ट में पढ़ाया था कि आइसोसाइनाइड इज ऑल्सो कॉल्ड एज कार्बल अमाइन, ऑफेंसिव पाउडर. तो दिस कार्बल अमाइन आइसोसाइनाइड व्हेन इट इज हाइड्रोलाइज इट विल गिव यू प्राइमरी अमाइन, but when it is reduced it will give you secondary amine, and cyanide on reduction gives secondary amine. तो cyanide reduction secondary amine CN group CH2NH2 में convert होगा. okay, isocyanide hydrolysis give primary amine, remember this. then alkane amide, amide ले लेते हैं, तो amide को फिर reduce करेंगे. again देखो कौन सा reducing agent use कर रहा हूँ, वही सेम सोडियम इथेनॉल लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड. कैसा होगा, सिंपल है, ये बॉन्ड को ब्रेक कर देना है CO को. ठीक है, 2 hydrogen goes to this carbon, 2 hydrogen goes to this O to form H2O, so you get R CH2NH2. देखो इसमें क्या मिलेगा, ये बॉन्ड हम लोग ब्रेक करेंगे यहाँ से. 2 hydrogen goes to this carbon atom, एक हाइड्रोजन था पहले से, तो यू गेट फॉर्मामाइड से CH3NH2 मिला. दिस इज कॉल्ड एज फॉर्मामाइड. फॉर्मामाइड ओके, या मिथेनामाइड भी बोल सकते हैं IUPAC में. मिथेनामाइड ये मैंने कराया IUPAC में. देखो ये लिया मैंने एसिडामाइड या इथेनामाइड, रिएक्ट किया, सिर्फ C डबल बॉन्ड को किस में कन्वर्ट करना है, CH2NH2. ओके, नाउ रिमेंबर इफ यू टेक अ सेकेंडरी अमाइड, देखो ये प्राइमरी अमाइड है RCONH2, अगर इसका एक H मैंने रिप्लेस कर दिया R से Cr, तो वो सेकेंडरी अमाइड बनेगा. अब इसको रिड्यूस करोगे तो अगेन देखो यहाँ से निकाल दो, both the hydrogen goes to this C, so you get what, R CH2NHR. कौन सा अमाइन बन गया, सेकेंडरी अमाइन. टर्शरी अमाइड लिया मतलब ये R भी नहीं है, so you get R CH2NR and R. कौन सा अमाइन बन गया, टर्शरी. देखो N, सेकेंडरी देखो NH. ओके, so remember primary amide, normal amide gives you amine, secondary amide gives you secondary amide, tertiary amide gives you tertiary amine. सिर्फ एक ही काम करना है, you break C double bond or convert this C into CH2 group. okay, now last is the reduction of nitroalkane. तो हम लोग ने reduction oxime का किया, 4 नेशन हाइड्रोजन, cyanide 4 नेशन हाइड्रोजन, alkanamide 4 नेशन हाइड्रोजन. now let's reduce nitro compound. नाइट्रो कंपाउंड के लिए यू कैन यूज दिस कॉमन रेनिनिकल या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड प्लैटिनम पैलेडियम, ये दो कॉमन है. बट टिन, Fe, जिंक प्लस कॉन्क HCl ये भी यूज कर सकते हैं. ये आप साइनाइड में यूज नहीं कर रहे हो, यू आर नॉट यूजिंग इट इन अल्केनामाइड, यू आर नॉट यूजिंग इट इन ऑक्साइम, बट यू आर यूजिंग इट इन नाइट्रोअल्केन. फॉर साइनाइड, फॉर ऑक्साइम, फॉर अल्केनामाइड यू रिक्वायर 4 नेशन हाइड्रोजन, यू रिक्वायर 6 here. 6 क्यों, बिकॉज इन केस ऑफ 6 नेशन हाइड्रोजन, 2 hydrogen out of the 6 nascent hydrogen, 2 goes to this N to form RNH2 plus 2 moles of water. बाकी water के साथ चले जाएगा 4 moles. like CH3N दिया है तो सिंपल सिर्फ इसको किस में कन्वर्ट कर दो, CH3NH2 मिथाइल अमाइन. ये किस NO2 है, सॉरी यार इट इज NO2, so it is converted into CH3NH2. देखो अगेन प्राइमरी. तो नाइट्रोबेंजीन दिया है, इसको कन्वर्ट कर दो C6H5NH2 एनालीन. ओके, तो याद रखना लैब मेथड में एनालीन को कैसा बनाते हैं. एनालीन या उसका डेरिवेटिव बनाना, यू यूज टिन एंड कॉन्क HCl इन लैब और यूज टाइटेनियम ट्राइक्लोराइड. ये सब रिड्यूसिंग एजेंट है, दे विल प्रोड्यूस 6 नेसेंट हाइड्रोजन, तो यू गेट एनालीन. NO2 से एनालीन बनेगा. लेकिन अगर रिड्यूसिंग एजेंट जिंक और NH4Cl यूज किया, इंस्टेड ऑफ यूजिंग जिंक एंड HCl यूज जिंक एंड अमोनियम क्लोराइड, then you get hydroxylamine. okay, remember this part. and reduction of nitrobenzene, अगर आपने ये नाइट्रोबेंजीन लिथियम एल्यूमिनियमाइड से रिड्यूस किया होता तो ये आपको डाई एजो कंपाउंड मिलता, विच इज कॉल्ड एज एजोबेंजीन. इसको हम लोग बोलते हैं एजो मतलब नाइट्रोजन, बेंजीन, बट बोथ ऑफ देम आर कंबाइंड विद ईच अदर, NCCH5 NCCH5. रिमेंबर दिस.
Okay, so this was reduction of nitroalkane. Now let's move on to the next theoretical preparation, next textbook preparation, Hoffman's bromamide degradation. डिग्रेडेशन का मतलब ये है कि देर इज अ लॉस ऑफ कार्बन एटम. ओके, तो अगर आप नॉर्मल अमाइड ले रहे हो RCONH2 और उसको रिएक्ट करते हो ब्रोमीन से और KOH से, याद रखना ब्रोमीन इन अल्कलाइन मीडिया, तो इट विल फॉर्म RNH2. वन CO, C विल बी लॉस इन द फॉर्म ऑफ सॉल्ट. तो N कार्बन लोगे तो N-1 कार्बन मिलेगा. मतलब इट इज यूज टू रिड्यूस कार्बन चेन. साइनाइड से कार्बन चेन बनता है और ब्रोमामाइड से कार्बन चेन कम होता है. फॉर एग्जाम्पल यू टेक RCONH2 अमाइड, इसको रिड्यूस नहीं करना है. अभी हम लोग ने रिड्यूस किया था CH2NH2 बाय यूजिंग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम इथेनॉल, तो वो एज इट इज उतना ही कार्बन देगा. बट इफ यू रिएक्ट दिस अमाइड, दिस अल्केना अमाइड विद ब्रोमीन, तो देखो ये बॉन्ड है ना, यहाँ से क्लीव होता है, ये बॉन्ड यहाँ से क्लीव होता है, रीअरेंजमेंट होता है. मतलब NH2 गोज टू R टू फॉर्म RNH2. वन कार्बन विल बी लेस. मतलब यहाँ पर N कार्बन लिया है तो N-1 कार्बन मिलेगा. प्लस you get 2 moles of KBr, plus you get K2CO3 plus 2 moles of H2O. तो एक कार्बन कम. फॉर एग्जाम्पल अब मैंने यहाँ पर लिया है इथेनामाइड, 2 कार्बन एटम. सी इट हैज 2 कार्बन एटम. सो जब ब्रोमीन और KOH आएगा तो ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन हो गया, तो एक C को लॉस कर दो, सो यू गेट CH3NH2 प्लस द बाई प्रोडक्ट. देखो बेंजामाइड लिया, you break this, NH2 goes to the ring, so it will form C6H5NH2 plus the byproduct. Okay, mechanism not required, but remember ब्रोमीन एक्ट करता है पहले नाइट्रोजन पे, तो KBrNH2O is lost from here. KBrNH2O निकल जाएगा, one of the bromine act on nitrogen. ठीक है, then this hydrogen which is attached, यहाँ से एक ब्रोमीन रिप्लेस करेगा ना H को, तो H को रिप्लेस किया ब्रोमीन ने. जो हाइड्रोजन अटैच है ये माइनस है ग्रुप से, तो एसिडिक है, तो जब बेस से रिएक्ट करोगे तो H2O निकल जाएगा, यहाँ का H और यहाँ का OH, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट ऑन नाइट्रोजन. ये अनस्टेबल है, सॉल्ट बन गया अनस्टेबल. ब्रोमीन इलेक्ट्रॉन लेके K के साथ निकल जाएगा टू फॉर्म KBr. देन देर विल बी अ रीअरेंजमेंट, R गोज टू दिस N टू फॉर्म आइसोसाइनेट RnCO. फिर जब KOH से रिएक्ट करोगे तो ये दोनों हाइड्रोजन, both the hydrogen attached to N to form RNH2 and K2CO3 is lost. You don't require this mechanism for your theory, but just go through it कि यहाँ पर जो intermediate बनता है वो isocyanate बनता है. Remember this intermediate. Wherever you see isocyanate, उसका next step hydrolysis होता है. Cyanate है यहाँ, cyanide नहीं है, cyanate है, RnCO. You get a primary amine. तो यू हैव टू रिमेंबर कि अगर तुमने अमाइड लिया है, इफ यू आर टेकिंग अमाइड, यू आर रिड्यूसिंग इट बाय लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो एज इट इज आपको जितना कार्बन है उतना ही कार्बन का प्रोडक्ट मिलेगा CH2NH2. आपको याद होगा रिडक्शन से C डबल बॉन्ड हो कन्वर्ट इनटू CH2NH2. सो 3 कार्बन है तो 3 कार्बन का अमाइड. बट Br2KOH लिया तो ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, मतलब यहाँ से और यहाँ से कम हो जाएगा, NH2 गोज टू द CH2 टू फॉर्म CH3 CH2NH2. सी 2 कार्बन, 1 कार्बन इज लॉस्ट in the form of K2CO3. Okay, so this was bromamide degradation reaction. Remember this point in bromamide degradation कि if you take a amide whose carbon is less than 7 तो वो primary amine नहीं देगा, but अगर carbon greater than 7 लिया तो it will form a cyanide. For example मैंने ये amide लिया है hepta 8 octamide. तो if I take octamide here, ethanamide तो octanamide हो गया ये. So if I take octanamide, 8 carbon atoms, so what will happen, this O and H2 will be lost and C have a triple bond with cyanide. तो कार्बन अगर 7 से ज़्यादा होगा तो वो cyanide बनेगा और कम होगा तो वो amide बनेगा. Now these are the some other methods for the preparation of amines, but they are not there in your JEE, they are not there in your theory as well as MSTCD. There is there only for JEE. NEET में भी chances कम है. So you go through this one just for the remembrance of product. For example, the first one is alkyl azide. N3R is azide group. Okay. N3H को हाइड्राजोइक एसिड बोलते हैं और RN3 को अल्काइल हलाइड. यू रिड्यूस इट, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम इथेनॉल, नेशन हाइड्रोजन लगेगा, फॉर्म RNH2 प्लस N2 गैस विल बी रिलीज. 2 हाइड्रोजन विल बी गोज टू N.
नाउ यू टेक अल्डिहाइड कीटोन रिएक्ट विथ अमोनिया, तो H2O निकल जाएगा फर्स्ट स्टेप में टू फॉर्म अल्डीमाइन या कीटीमाइन, याद है NH इज कॉल्ड एज इमाइन, तो अल्डीमाइन या कीटीमाइन कीटोन से बन रहा है। यू रिड्यूस इट, तो वन हाइड्रोजन गोज टू दिस CH, वन गोज टू दिस H टू फॉर्म प्राइमरी अमाइन। टेक एसिड क्लोराइड रिएक्ट विथ सोडियम अजाइड, दिस इज सोडियम अजाइड, तो Cl रिप्लेस हो जाएगा N3 से। Then there will be a courteous rearrangement where the N2 will be removed to form isocyanate, याद है अभी बताया था, isocyanate को हाइड्रोलिसिस करोगे तो both the H goes to N to form RNH2, KOH से भी कर सकते हो like in Hoffman bromamide degradation। then अभी ये रिएक्शन श्मिट रिएक्शन हम लोगों ने देखा था एसिड में, when acid reacts with hydrozoic acid CO2 is removed, NH2 goes to the R to form RNH2, CO2 and N2, one carbon will be less। देन उसके बाद में द नेक्स्ट रिएक्शन इज ग्रिडनार्ड विथ क्लोरोअमाइन, अमोनिया इज NH3, क्लोरोअमाइन इज ClNH2, मतलब अमोनिया का H Cl से रिप्लेस किया, RMgX से रिएक्ट किया तो Cl गोज टू Mg, R गोज टू NH2 टू फॉर्म RNH2। अल्कीन पे अमोनिया एक्ट कर दो इन प्रेजेंस ऑफ कोबाल्ट, कमर्शियल मेथड, इथेनामाइन प्रिपेयर करेगा। Then third butyl alcohol, when it is react with H2SO4, it calls a Ritter reaction. Ritter reaction is used for the preparation of amines, primary amine, but it should have tertiary carbon. याद रखना, Ritter reaction is used for preparation of amines, primary amines, but with tertiary carbon atoms. So you require tertiary butyl alcohol, react with hydrogen cyanide and H2SO4. This OH will be replaced by NH2. Then hydrozamic acid, RCONHOH. याद रखो RCONH2 को अमाइड बोलते हैं और RCONH2 को अमाइड बोलते हैं, उसका H OH से रिप्लेस होगा, दैट इज कॉल्ड एज हाइड्रोजामिक एसिड। ओके, व्हेन इट इज रिएक्टेड विथ H प्लस, तो यहाँ से H2O निकल गया, इट फॉर्म्स RnCO, आइसोसाइनेट, अगेन देखो वही बन गया आइसोसाइनेट, इट अंडरगोज अ रीअरेंजमेंट, देखो हाइड्रोलिसिस किया मैंने तो ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, बोथ द हाइड्रोजन गोज टू N, it forms RNH2 called as Lawson rearrangement reaction। हाइड्रोजामिक एसिड से लॉसन rearrangement reaction। हाइड्रोजामिक एसिड कैसा बनता है, एसिड रिएक्ट विथ थाइनिल क्लोराइड, OH रिप्लेस होगा Cl से, फिर NH2OH से रिएक्ट करो तो यहाँ से एक Cl, यहाँ से एक H निकलेगा, मतलब -HCl टू फॉर्म हाइड्रोजामिक एसिड। नाउ एनालिन्स के लिए फ्यू रिएक्शन, फिनॉल को अमोनिया से रिएक्ट करो, जिंक क्लोराइड, एनालिन मिला। सोडियम बेंजीन सल्फोरेट रिएक्ट्स विथ सोडामाइड, NaNH2 इज सोडामाइड, ठीक है, अगेन NH2, ये पूरा रिएक्शन रिप्लेस हो जाएगा। एजोबेंजीन CCH5N11 CCH5, रिड्यूस इट, तो ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन गोज टू दिस कार्बन, 2 हाइड्रोजन गोज टू दिस कार्बन, ओके, सो 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, you had an amine here। Nitrosobenzene, NO is called as nitroso, it is reacted again, reduced by tin and concatenates nitrogen and 2 hydrogen goes to this oxygen to form CCH5NH2 and H2O। क्लोरोबेंजीन को अमोनिया से रिएक्ट करो, टेक Cu2 एज अ कैटलिस्ट, ये हम लोग ने हैलो अल्केन्स में देखा है, at 300 atm pressure you get an aniline। so these reactions are only there for your JEE and NEET। guys, refer to the physical property of amines। basic idea about lower amines are gas, fishy odor, higher amines are liquid and more higher are solid। aromatic amines तो lower liquid ही रहते हैं और higher solids form में आते हैं, toxic रहते हैं aromatic। boiling point again directly proportional to molecular weight, okay, but their boiling point is higher than alkene and alkene due to intermolecular hydrogen bonding। मतलब ये अगर RNH2 लिया है तो N पे माइनस है और दूसरे RNH2 के H पे प्लस है, तो they can have a intermolecular hydrogen bonding। ये चेन की वजह से इनका बॉन्ड जल्दी ब्रेक नहीं होता, इट रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर। बट इंटरेस्टिंग पार्ट इसमें यह है, बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर ऑफ सम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। देखो मैंने 2 कार्बन के ना 2 कार्बन के ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया, फॉर एग्जाम्पल इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट 413.5 सबसे हाईएस्ट, फिर एसिडिक एसिड देखो 2 कार्बन का तो एसिड, देन एनहाइड्राइड 2 कार्बन का, फिर उससे कम बॉइलिंग पॉइंट अल्काइल साइनाइड, फिर अल्कोहल, फिर कीटोन, फिर एसिड क्लोराइड, फिर एस्टर, देन यू हैव अल्डिहाइड, अमाइंस, ईथर, अल्केन्स। तो ये पूरा एक मैंने रिएक्शन दिया है, ये मैंने आपको कंपैरिजन दिया अबाउट द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ द डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड। रिमेंबर दीज ट्रेंड, अगर बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर पूछा आपको तो।
अच्छा, आइसोमेरिक अमाइन में आपको याद होगा एज ब्रांचिंग इंक्रीजेस इट डिक्रीजेस, सो ये आइसोमेरिक अमाइंस के बारे में, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। सॉलिबिलिटी में सबसे हाईएस्ट सॉलेबल प्राइमरी अमाइन है और सबसे लोवेस्ट टर्शियरी। प्राइमरी क्यों सबसे हाईएस्ट सॉलेबल है? बिकॉज प्राइमरी अमाइन में Nb हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा वाटर के साथ और 2 हाइड्रोजन वाटर के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे, तो इनकी सॉल्युबल मतलब दे आर मोर हाइड्रेटेड विद वाटर। टर्शियरी अमाइन कैन फॉर्म ओनली 1 हाइड्रोजन बॉन्ड, वो भी रेयरली, बिकॉज ये नाइट्रोजन हैवी अल्काइल ग्रुप से सराउंडेड है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में यहाँ पर स्टीयरिक फैक्टर आ जाता है, ओवर क्राउडिंग। तो जितना कम हाइड्रोजन बॉन्ड रहेगा वाटर से उतना कम सॉलेबल रहेगा, और मोलार मास जितना बढ़ता है ऑब्वियसली हाइड्रोफोबिक नेचर बढ़ता है तो सॉलिबिलिटी कम होता है। सबसे लीस्ट सॉलेबल होते हैं एरोमेटिक अमाइंस। So remember this physical properties. Next lecture में we'll start with the chemical reaction of amines.